Okay. So I had asked you, we were doing quadratic 5a. I had asked you to solve sub question 1 to sub question 7. Now, I guess we had tried question number 4. Question number 4 we had tried. Okay, and the remaining ones were given for homework. So what I'll do is I'll solve 1 or 2 more questions of that type. ठीक है? सी मैं सारे क्वेश्चंस क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज ये रिपीटेशन है 9th स्टैंडर्ड का और जो एग्जाम में आता नहीं है इजीली. ठीक है, बट ये आपको जनरली क्यों आना चाहिए, बिकॉज while solving the word problems ऐसे इक्वेशंस बनेंगे जिनको आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए. ओनली फॉर दैट they have given you this exercise. ठीक है, तो इसलिए मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ इसके ऊपर, बट स्टिल आई विल सॉल्व at least 2 questions. I'll do sub question 5. Question number 4 sub question 5. ठीक है, क्या क्वेश्चन है? 2 upon x plus 1 plus 3 upon x plus 2. Remaining questions I have sent you solutions in the group also, so you can refer them. They are pretty easy. See, अभी ऐसा क्वेश्चन है तो सिंप्लीफाई करने का सिंपल तरीका क्या होता है? सिंप्लीफाई करने का सिंपल तरीका होता है दैट टेक LCM. ओके, नाउ हाउ टू टेक LCM of variables? तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं and denominators are multiplied with each other. Okay, so 2 into x plus 2 plus 3 into x plus 1 upon x plus 1 x plus 2 equals 17 upon 6x. Now open the brackets. Here also this x will multiply with both the terms. ये जो x है यहाँ पे, see, ये जो एक x है ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, तो क्या आएगा मुझे x स्क्वायर प्लस 2x. ओके, फिर देन ये जो 1 है ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, तो मुझे क्या आएगा? 1x प्लस 1 2 से 2 equals 17 upon x, 6x. Now 2x plus 3x will give me 5x plus 4 plus 3 is 7 upon x square plus 3x plus 2 equals 17 upon 6x. Now I have done the simplification on each side. अब आगे क्या हो सकता है? Further I will now normal cross multiplication. 6x will go here and this term will go on the right hand side. Normal cross multiplication. So 6x into 5x plus 7 equals 17 into x square plus 3x plus 2. ठीक है, so this will become 30x square plus 6 7s are 42x equals 17x square plus 17 3s are 51x plus 34. So shift the 17x square on the minus 17x square plus 42x minus 51x equals 34. नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, ठीक है? किसी को कोई स्टेप में प्रॉब्लम है तो पूछ लेना मुझे. थर्टी फोर को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, सो ये आएगा. नाउ फैक्टराइजिंग इट, सो 13 into 34 हो जाएगा. दैट विल बी द प्रोडक्ट. 13 into 34 will give you 442 minus 442. And factors, one of the students has found the factors. So let me check whether it is correct or not. Minus 9 चाहिए. So 26 into 17, correct. So factors आ रहा है 26 and 17. Minus 26 plus 17.
So 13x common, x minus 2. 17 common, x minus 2. This is my final answer. Prithviraj, which question are you talking about? Question 2. That means that the root x plus 27 equals x minus 3. Are you talking about that question? So फटाफट कॉपी कर लो ये. I hope everyone has understood. कुछ doubt है? You can raise your hand. अच्छा, मैं एक जरा डाउट ले रहा हूँ छोटा सा यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 2, सब क्वेश्चन 2. सी पृथ्वीराज, दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस. x minus 3, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे आप, तो x plus 27 will become x minus 3 the whole square. ठीक है, होल स्क्वायर करोगे तो x square a square plus b square minus 2ab, तो ये कुछ ऐसा आएगा. So x square plus 9 minus 6x. So इसके बाद शिफ्ट करो नंबर्स को. सो एक्स स्क्वायर, ये दोनों जो है ना x प्लस 27, दोनों को राइट हैंड साइड में लाओ. माइनस एक्स माइनस 27 प्लस 9. ये 9 कैसे आया पृथ्वीराज? बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9. माइनस एक्स माइनस 6x माइनस 7x माइनस 18. ये ऐसा आएगा इक्वेशन. देन यू कैन स्प्लिट इट. 9 2 आपका फैक्टर्स होगा. Factors will be 9 into 2. Okay. I'll do one more question of that similar type. Question number 6. ठीक है. तो ये भी सेम क्वेश्चन है. इसमें भी क्या करना है? एलसीएम सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई. एक ही साइड में हट गया. एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लाई में फर्क है. एलसीएम में when there is a plus or a minus sign in between, ठीक है, तो you take LCM by cross multiplication. ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हो, प्लस डिनोमिनेटर्स आल्सो गेट मल्टीप्लाइड विद ईच अदर. So your x into x plus 2 equals 7/6. So when you open the brackets, you will get 2x plus 4 plus 4x upon x square plus 2x equals 7/6. So 2x plus 4x will become 6x plus 4. Simplify this.
Cross multiply, so you will get 36x plus 24 equals 7x square plus 14x. Shift the numbers on the right hand side. So ये बन जाएगा इक्वेशन. 24 into 7 is minus 168 and factors will be 28 into 6. Apply this here and you will get the answer. Same type के sums है. Yes, any doubt here how I took the LCM or any multiplication, anything here? See, question number 8, sub-question 8 and sub-question 9. Both sub-questions we are going to do it because they are different. Yes, students, should I start with the question number 8? Very few students are responding today. Now see, this question number 8. Now see, this is that type of question where you see root x upon x minus 5 और second term is root x minus 5 upon x. मतलब ये जो दो terms है they are reciprocal of each other. मतलब एक term का उल्टा दूसरा term है. You can see that root के साथ x upon x minus 5 और यहाँ पे x minus 5 upon x. एक term दूसरे का उल्टा है. ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, let जो first term होता है along with the root sign we take it as some variable. Okay, so मैंने क्या किया, root x upon x minus 5 को a ले लिया. ठीक है, अब अगर root x minus x upon 5 a है तो ये दूसरा टर्म उसका उल्टा है. ओके, ये जो दूसरा टर्म है उसका उल्टा है तो वो हो जाएगा 1 upon a. समझ में आ रहा है? अगर ये टर्म a है, if this term is a then this other term will be 1 upon a. उल्टा है उसका, करेक्ट. तो ये 1 अपॉन है और दोनों के बीच में क्या है, प्लस साइन, इक्वल्स टू 1 अपॉन 6. Any doubts here? How I took a and 1 upon a? So first term को मैंने a लिया और second term उसी का उल्टा है तो वहां पे लिख दिया 1 upon a. Now let's solve this. तो इसको LCM लेंगे.
ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे भी ए आना चाहिए, इसमें भी। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए इक्वल्स 13/6। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 6a square plus 6 equals 13a. Shift this 13a on the right hand side. So 6a square minus 13a plus 6 equals 0. 6 6 are 36. 36 के फैक्टर्स चाहिए। So क्या आ जाएगा, 9 4 36, एंड दोनों को नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, दोनों को नेगेटिव ले लेंगे बिकॉज मुझे प्लस 36 चाहिए। सो दोनों को नेगेटिव लेंगे तो मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा। Now here 3a can be taken common. So 2a minus 3 minus 2 can be taken common. So 2a minus 3. So 2a minus 3, 3a minus 2 equals 0. So 2a is equals to 3 or 3a is equals to 2. A is 3 upon 2 or a is 2 upon 3. I'm getting this as the answer. Once you get the value of a, we will re-substitute. ठीक है, सो a is 3/2। ठीक है, तो a की जगह पे a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू मैंने ली थी I had taken the value of a as x upon x minus 5 is equals to 3/2। ठीक है, यही लिया था ना मैंने a को, x अपॉन x माइनस 5 इक्वल्स 3/2। ये a की जगह पे, ये जो a है ना यहाँ पे, इसकी जगह पे मैंने ये पुट किया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे रूट है लेफ्ट साइड पे। ओके, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो x अपॉन x माइनस 5 इक्वल्स 9/4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x इक्वल्स 9x माइनस 45। So 45 equals 9x minus 4x. So 5x equals 45. So x equals 9. ओके, ये होने के बाद x की एक और वैल्यू है, a is 2/3। सी है, a की एक और वैल्यू है ना, ये हमने पहली वाली वैल्यू यूज करके सॉल्व किया, दूसरी वैल्यू भी लेनी पड़ेगी, दैट इज 2/3। ओके, सेकेंड वैल्यू ऑफ a इज 2/3। तो वापस a की जगह पे वैल्यू पुट करो, x अपॉन x माइनस 5 इक्वल्स 2/3। अब सॉल्व करो वापस सेम तरीके से।
सर लेकिन जो सेकेंड ए है, मतलब फर्स्ट सम में तो स्क्वायर रूट था और एक्स अपॉन एक्स माइनस 5। सर लेकिन नेक्स्ट में तो उल्टा था ना, फिर से सेम वैल्यू ली अपन ने। देखो, नेक्स्ट में उल्टा था, हमने हमारे ए को क्या लिया है, हमने हमारे ए को क्या वैल्यू ली थी? एक्स और एक्स माइनस 5 उसके नीचे, हाँ। करेक्ट, तो ये हमारी ए की वैल्यू है। यस। तो इसी वैल्यू को हमें एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे पुट करना है। तो सर वो सेकंड वैल्यू का कोई वो नहीं है? कोई मीनिंग नहीं होता उसका, सेकंड वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं है। ओके सर, थैंक यू। Yes, copy this all of you.
Yes, students, just solve question number 5, sub question 1, 2, and 3. I'll be back in a minute. Just solve question number 5, sub question 1, 2, and 3.
Yeah, students, sorry for the delay. Yes, so have you solved the question number 5, sub question 1, 2 and 3? They are very easy. They are very easy, sub question 1, 2 and 3. Only the fourth one is where you may need my help. So yes, जरा मुझे एटलीस्ट yes लिख के भेज दो कि आपने सॉल्व कर दिया है. ये एक सब क्वेश्चन 9 बाकी है 4 का, दैट आई विल डू इट. सब क्वेश्चन 9 बाकी है 4 का, वो मैं कर देता हूँ. वो भी एक्चुअली ऐसे सेम टाइप का ही है जो भी हमने किया ना, सिमिलर टू दैट, बट फिर भी ये कर लेते बिकॉज ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है एंड जो डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं वो स्कूल में फेवरेट हो जाते हैं. दे मे आस्क दिस, सो इसीलिए वी विल सॉल्व दिस. सी मैंने इस रूट एक्स अपॉन 3 को ए ले लिया, ठीक है. तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा रूट 3 अपॉन एक्स वो बन जाएगा 1 अपॉन ए. तो 6 ये हो जाएगा 1 अपॉन ए इक्वल्स 5. सो ए प्लस 6 अपॉन ए इक्वल्स 5. टेक एलसीएम. Now split this. For 6 we will take 2 into 3 minus 2 minus 3. काफी इजी है, वेरी इजी. नॉर्मल स्प्लिटिंग, मिडल टर्म स्प्लिटिंग. Those who are not very good in middle term splitting, if you want I'll send you the video lectures of 9th standard where you have middle term splitting. उसको प्रैक्टिस कर लेना एक बार. Now resubstitute. a की जगह पे मैं लिखूंगा रूट एक्स अपॉन 3 इक्वल्स 3. पहले फर्स्ट वाले पे, ठीक है, पहले फर्स्ट वैल्यू को यूज करेंगे. एंड a की जगह पे लिखूंगा रूट एक्स अपॉन 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. सो ये बन जाएगा x अपॉन 3 इक्वल्स 9. सो x इक्वल्स 27. एंड देन सेकेंड वैल्यू के लिए अगेन इन द प्लेस ऑफ a पुट रूट x अपॉन 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. सो ये हो जाएगा 4, x इक्वल्स 12. दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ x.
Done? Students done? Now let's do the last question. Question number 5. Sub question 4. ठीक है कॉपी करो. I'll give you 2 more minutes. कुछ लोगों का कॉपी करना बाकी है. See, now how to solve this question? This is the direct middle term split. This is direct middle term splitting. ठीक है, middle term split करने के लिए हम क्या करते हैं? This first number gets multiplied with the last. इन दोनों से product मिलता है. With this number √5 is multiplied with -4 √5. इससे हमें product मिलता है, product. Okay, इससे हमें product मिलता है. So means मुझे बताओ what is √5 into -4 √5? What is √5 into -4 √5? √5 into √5 हो जाता है 5 और ऑलरेडी क्या है -4, सो ये मिलेगा -20. आपको सम में करना नहीं है ये, ठीक है, बट आपको प्रोडक्ट आपका यूज करना है -20. यहाँ पे कर देना, सॉल्व मत करना, उसे सम में नहीं करना होता, ठीक है. तो जो भी इनिशियली नंबर होता है x² के साथ, दैट गेट्स मल्टीप्लाइड विद द लास्ट नंबर फॉर प्रोडक्ट. तो अब -20 का आई विल हैव टू फाइंड फैक्टर्स. सो -20 के फैक्टर्स क्या हो गए? 10 2 जा, ठीक है, +8 चाहिए, so +10 -2. So here I will write 5x² plus 10x minus 2x minus 4 √5 equals 0. समझ में आ रहा है क्या किया है? कोई भी जब इक्वेशन होता है, इफ यू हैव एनी इक्वेशन, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव इक्वेशन लाइक दिस, सो जब आपको प्रोडक्ट चाहिए होता है, प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? दिस नंबर इनटू दिस नंबर.
इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 मिला, तो 8 को एज ए प्रोडक्ट यूज करना है, ठीक है। एंड दिस विल रिमेन योर सम, मिडल टर्म विल रिमेन योर सम। सो 4 into 2, 8 के प्रोडक्ट्स आपको लिखने हैं और इसे स्प्लिट करना है। See, it will never happen that the product will be a root number. Root irrational number नहीं आएगा कभी, ठीक है, वो मल्टीप्लाई होके रैशनल बन जाएगा। Now, after getting this, there is one more important step here. After getting this, see, now I hope everyone has written the first step. See, अब ये जो स्टेप मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ, थोड़ा मैं इसको साइड में बताता हूँ यहाँ पे अच्छे से। See, we have the step √5x² plus 10x, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन ले, इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं? सी, सो हियर आई कैन टेक x कॉमन, ठीक है। x के अलावा मैं और क्या कॉमन ले सकता हूं इन दोनों में? कैन एनीवन टेल मी? यस √5x और फिर ब्रैकेट में x प्लस 2 √5। ओके, सो 5 कॉमन नहीं आ सकता, ठीक है। व्हाट यू हैव सेड इज करेक्ट, बट कुछ लोग कह रहे हैं मुझे कि 5 कॉमन आएगा। 5 कॉमन नहीं आएगा क्योंकि 5 है ही नहीं ना यहाँ पे, तो √5 है, ये √5 है। तो ये जो 10 है ना, 10 इज नथिंग बट 5 into 2। 10 इज नथिंग बट 5 into 2, ठीक है। और 5 क्या होता है? 5 कैसे बनता है? 5 बनता है √5 into √5 से। √5 into √5 5 होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं 5 की जगह पे लिखूंगा, इन द प्लेस ऑफ 5 आई विल राइट √5 into √5। समझ रहे हो? ये 10 है क्या? दिस 10 इज नथिंग बट √5 into √5, दैट इज 5 into 2 10। ओके, अब इस टर्म में और इस टर्म में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? फ्रॉम दिस टर्म एंड फ्रॉम दिस टर्म आई कैन टेक √5 कॉमन। ये एक √5 और यहाँ से एक √5 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और इधर से एक x और इधर से x कॉमन आया। ये मैंने 2 को सर्कल क्यों किया है? 2 को क्योंकि ये x² है, मतलब ये 2x है। तो मतलब यहाँ से मैंने √5x को कॉमन लिया, तो इधर बचा x एंड इस 10x में से x चला गया, √5 चला गया, तो √5 और 2 बचा, मींस 2√5 इज रिमेनिंग। From these two terms it is simple, क्या कॉमन आएगा इस 2 में से? डायरेक्टली -2 will come common, -2 will come common, तो आएगा x plus 2√5। तो बस ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। This is my answer. These are the two values of x.
remember again, I'm telling you, exercise 5A is a revision exercise from class 9. ठीक है, एक्चुअल सम्स जो है जिसके 95% चांसेस है एग्जाम में आने के, वो अभी स्टार्ट होंगे एक्सरसाइज 5B से. ओके, यस बिलाल, वेरी गुड डाउट. सी, आइडियली आपको एग्जाम में अगर ये आंसर आता है 2/√5, तो यू शुड रैशनलाइज योर आंसर. 2/√5 को यू शुड रैशनलाइज इट, तो आपको मिलेगा 2√5/5. ठीक है, आइडियली ये होना ही चाहिए, ये करना ही चाहिए. दिस शुड बी योर फाइनल आंसर. बट फॉर आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन द आंसर बिहाइंड द टेक्स्ट बुक इज दिस. उन्होंने इसी स्टेप पे स्टॉप कर दिया है. ठीक है, उनको आगे रैशनलाइज करना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं किया है. अगर एग्जाम में आपको ऐसा आता है तो यू शुड रैशनलाइज एंड ब्रिंग द आंसर टू दिस लेवल. वो ज्यादा करेक्ट होता है ऑलवेज. Okay, I hope this is done. So then we can start with exercise 5B. Okay, chalo. I'll erase this. I'll remove this. Let's start with exercise 5B. One of the students is left to copy. Copy fast, please.
Okay, so now in exercise B we are going to use the formula of finding the roots when, sorry for the disturbance, there is some work going on in classes. So whenever in the question they say solve the following using formula, अगर using formula बोला तो हमें जो हमारा ये फॉर्मूला है x is minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a, इस फॉर्मूला को यूज करना पड़ता है जब भी उन्होंने कहा है यूजिंग फॉर्मूला. Okay, whenever they say using formula we have to use this. ठीक है. Now this is about factorization only. अगर समझो आपको बोला है यूजिंग फॉर्मूला और आप अगर स्प्लिटिंग से आंसर आ रहा है आपको तो भी आपको नहीं करना है, आपको फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा. अगर बोला है क्वेश्चन में यूज फॉर्मूला तो यू हैव टू यूज द फॉर्मूला. ओके, एंड दे हैव सेड द गिव द आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस मतलब जैसे समझो अगर आंसर आपको आया 356 तो आपको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो इनको राउंड ऑफ करना पड़ेगा. तो यू विल गेट द आंसर एज 36. अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस हो गया ये, मतलब डेसिमल के बाद 2 नंबर्स होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. मैं सम्स करते वक्त और अच्छे से बताऊंगा. ठीक है. सो वी हैव द फॉर्मूला, यू ऑलरेडी नो द फॉर्मूला, वी हैव डन इन बैंकिंग. सो let's start the first question. Exercise 5b, question number 1, sub question 1. The question is x square minus 5x minus 8 equals 0. So what is a, b and c? First जो इसका coefficient होता है x square का, that is a. The coefficient of x is b and the coefficient of y is, the coefficient of the constant number is c. जैसे constant number है -8 तो वो हो गया c, -5 हो गया b, और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है मतलब 1 होता है. If there is no number means there is 1. So आपकी a की वैल्यू है 1, b is -5 and c is -8. ठीक है. सीधा फॉर्मूला में पुट करो, सीधा इसके वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करो. तो x इक्वल्स -5 क्योंकि b -5 है, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर मतलब -5 स्क्वायर -4ac. ठीक है. देख लो मैं कैसे वैल्यूज पुट कर रहा हूं. अपॉन 2 into 1. ठीक है. माइनस माइनस विल बिकम प्लस, प्लस माइनस रूट -5 स्क्वायर इज 25, -4 -8 बन जाएगा +32 अपॉन 2. ठीक है. सो x इज 5 प्लस माइनस रूट, ये कितना हो जाएगा 57 अपॉन 2. ठीक है. अब ये प्लस और माइनस साइन है, इस प्लस और माइनस साइन की वजह से यू विल गेट 2 आंसर्स. यू विल गेट 2 आंसर्स हियर बिकॉज ऑफ दिस प्लस एंड माइनस साइन. ठीक है. तो इसको 2 बार लिखो अभी. x 5 प्लस रूट 57 अपॉन 2 और x इक्वल्स 5 माइनस रूट 57 अपॉन 2. एक बार प्लस लिखा, एक बार माइनस लिखा, ऐसे हमें 2 वैल्यूज मिलती है x की. ठीक है. दिस इज हाउ वी गेट द 2 वैल्यूज ऑफ x. ओके. ठीक है. अब ये रूट 57 की वैल्यू कहां से मिलेगी मुझे? मैंने आपको बताया था दैट यू विल हैव you will be given a booklet of square roots. 1 to 100 का स्क्वायर रूट्स होगा उसके अंदर. ओके. आप अपने टेक्स्ट बुक में लास्ट पेजेस पे जाओ, यू विल फाइंड दैट. जैसे मेरे बुक में स्क्वायर रूट्स का टेबल कहाँ है? I don't know which page number you have the square roots, but it will be there in the book. So you can see something like this. जैसे यहाँ पे देखो ये स्क्वायर रूट्स लिखा है ऊपर इधर. स्क्वायर रूट से बहुत बड़ा सा टेबल है, एक आपकी बुक में होगा ये स्क्वायर रूट्स का टेबल.
और वो स्क्वायर रूट्स के टेबल से, यस इन द एग्जाम्स आल्सो यू विल गेट दैट। अब रूट 57 की वैल्यू देखो क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 57? यस, आर यू एबल टू फाइंड द वैल्यू? किसी को नहीं समझ में आ रहा है वैल्यू कैसे फाइंड करना है? सर डिनोमिनेटर में 4 आएगा ना? क्यों? सर क्योंकि ले उधर लिखा है 2a और a की वैल्यू 2 है। ए की वैल्यू 1 है। ओ ओके सर। सर मुझे समझ में नहीं आया फाइंड कैसे करने का स्क्वायर रूट। अब एक्चुअली एक काम करो, डू वन थिंग, मुझे मुझे वो जो स्क्वायर रूट का पेज है ना आपके टेक्स्ट बुक के पीछे से, उसका एक थोड़ा क्लियर पिक सेंड करो, मैं बताता हूँ कैसे करना है। सर आई थिंक जो आप बोल रहे हो ना सर वो पेज 404 पर है, पावर्स एंड फैक्टोरियल्स। आपकी आवाज अच्छे से नहीं आई, मैंने कुछ सुना प्रोग्राम जो कोड आपको दे दो, बट मेरे पास जो टेक्स्ट बुक है वो शायद आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, क्योंकि मुझे कोई फोटो भेज रहा है, मैं उसको यहाँ पे आपको शेयर करके बताता हूँ कि कैसे वैल्यू फाइंड करना है। encourage them for start making investments and making scale doing their savings in terms of whatever product they want to sell. Secondly, whether they So this is this type of page you will find in the behind your textbook, जिसपे ऊपर लिखा हुआ है square roots. Okay, से square roots लिखा हुआ है ये पेज पे। क्या डाउट है आपको रीनव? सर हम लोग के बुक में ये वाला पेज नहीं, मतलब दूसरे पेज पे है, उस पे लिखा है ये यही इसमें पेज है, ये कुछ पेज सही है, जो आपने बाद में भेजा है वो गलत पेज भेजा है, इसलिए मैं आपको रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। ओके सर। हाँ, सो सी ये दिस इज द पेज यू आर गेटिंग, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट की वैल्यूज को देखना कैसे है, हाउ डू यू हैव टू सी द वैल्यूज, ध्यान से देखना। सी ये क्या लिखा है, 54, 55, 56, 57, ओके, और बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं आपको आगे, ओके, कंफ्यूजन हो जाएगा, इतने सारे नंबर्स हैं यहाँ पे आगे, तो इनको कैसे डील करें ये नंबर्स से।
Just a second, my documents not work. Yes, I know the screen is black. Yes, are you able to see? Okay. So मैं बता रहा था कि see this, यहाँ पे क्या दिया है 54 है, 54 के आगे एक नंबर दिया है 2324, ठीक है। 2324 इज नॉट द आंसर, ठीक है, ये आपका काम का नंबर नहीं है 2324, इसको हटा दो, ठीक है। इसके नीचे जो नंबर दिया है ना वो आपके काम का है। क्या नंबर है? 7348, 7348 ये हमारे काम का नंबर है, ठीक है। अब 7348 में से हमारा आंसर क्या है, तो आपको क्या करना है, ये 7348 सी, आपको क्या करना है, एक नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट डालो, एक नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 54 क्या होगा, स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या हुआ रूट 54 का 7.348। समझ में आ रहा है? ओके, आप रफली दिमाग में चेक भी कर सकते हो। देखो 54 का स्क्वायर रूट पूछा है ना आपको, किसका स्क्वायर रूट पूछा है, 54 का पूछा है, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 49 और 64 के बीच में का जो आंसर होगा वो कुछ ऐसा ही होगा, 7.3 होगा, ठीक है। तो ये होता है आपका आंसर। अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मुझे क्वेश्चन में पूछा है दैट 57 का बताओ। ओके, तो 57 के नीचे का नंबर क्या है 7550, 755, एक मिनट थोड़ा, 755, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक नंबर के बाद पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा 7550। ओके, अब ये जो पॉइंट डालने की बात है ना, ये आपको खुद सोचना पड़ता है पॉइंट डालने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंट डालते वक्त आपको सोचना है कि कहाँ पे पॉइंट डालना है। ओके, एकदम बेसिक ही होता है, वैसे तो इजी होता है, इशू कुछ आएगा नहीं, बट ठीक है। चलो, रफली आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आई जस्ट एंड दिस। ये एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू कॉपी दिस इमेज इन द राइटिंग पैड इटसेल्फ, थोड़ा ज्यादा इजीली वहां पे हम एडिट कर सकता था, बट ये हो नहीं पा रहा है वहां पे। एनीवे, अच्छा हाँ, वेट वन मोर थिंग, ये आगे के नंबर्स क्या है, ये नहीं हमने डिसाइड किया ना आगे के नंबर्स क्या है। सो ये आगे के नंबर्स पता है क्या है, ऐसा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल दे आस्क यू इन द क्वेश्चन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 57.5, इसका स्क्वायर रूट पूछा है 57.5 का। तो आप क्या करोगे, सी, ये जो यहाँ पे 57 दिख रहा है ना, और ऊपर क्या दिख रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है डेसिमल पॉइंट्स। तो अगर आपको 57 का ही चाहिए तो आप 0 वाले कॉलम में देखो। इफ यू वांट 57.1 तो 57.1 वाला ये कॉलम है। अगर आपको 57.2 चाहिए तो 57.2 का ये कॉलम है। 57.3 चाहिए तो 57.3 का ये कॉलम है। जैसे मैंने यहाँ पे 57.5 मांगा आपको, ठीक है, आई एम आस्किंग यू 57.5, तो 57.5 के लिए ये वाला कॉलम आएगा, ठीक है। और 57.5 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है मुझे वैल्यू, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या होगा 7.583। समझ में आ रहा है बात? किसी को कुछ डाउट आ रहा है कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं टेबल में से, इस बुक में से, ठीक है। वो फर्स्ट वैल्यू हमारे काम की नहीं है, फर्स्ट वैल्यू को जाने दो। ओके, पॉसिबिलिटी है कि आपको जो एग्जाम में स्क्वायर रूट का टेबल जो मिले उसमें ये फर्स्ट वैल्यू होगी ना, ठीक है, बिकॉज अलग अलग पेपर, अलग अलग स्कूल अलग अलग टाइप के पेपर्स देते हैं, सब अलग अलग स्कूल में अलग अलग पेपर्स मिलते हैं, तो शायद आपको ये वैल्यूज मिलेगी भी नहीं जो ऊपर वाली है ये, ठीक है, सिर्फ ये नीचे वाली ही देंगे बिकॉज वही यूजफुल होती है। तो इट में हैपन दैट, ठीक है, बट आपको रफली पता होना चाहिए।
ओके, बुकलेट आपको मिलेगी, बुकलेट में ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज भी होती है और ये वाली वैल्यूज भी होती है, ठीक है। विद द कोर्स ऑफ टाइम यू विल अंडरस्टैंड। फॉर दिस चैप्टर वेरेवर वी नीड स्क्वायर रूट्स यू विल हैव टू रेफर दिस टेबल, ठीक है। टेबल ही रेफर करना, कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट की वैल्यू मत फाइंड करना, वो गलत आदत है, क्योंकि आपको एग्जाम में टेबल में वैल्यू ढूंढने की आदत होनी चाहिए। समझो आपने वैल्यू ढूंढते वक्त कभी ऊपर की या नीचे की वैल्यू ले ली, तो वो मिस्टेक भी आपको पता होनी चाहिए कि मेरे से हाँ ये मिस्टेक हो सकती है। दैट इज व्हाई ऑलवेज रेफर द टेबल। ओके, चलो सो विल कम टू द क्वेश्चन। हमारा वैल्यू क्या था 57 का, वैल्यू क्या मिली थी 7.55, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 7.55 अपॉन 2 और 5 माइनस 7.55 अपॉन 2, करेक्ट। 5 प्लस 7.55 क्या होगा 12.55 अपॉन 2 एंड 5 माइनस 7.55, 5 माइनस 7.55 होगा माइनस 2.55 अपॉन 2, ठीक है। तो अभी इनका भी आंसर ढूंढो, क्या आएगा 6.27। 6.27 एक्चुअली डेसिमल में आना चाहिए ना ये। Always remember one thing. Always remember one thing. If they are asking you to find up to 2 decimal places, if they are asking you to find up to 2 decimal places, तो आप जब सम सॉल्व करोगे ना तो 3 तक फाइंड करो, 3 तक फाइंड करके उसको राउंड ऑफ करना है। जितना डेसिमल प्लेसेस वो आपको पूछते हैं एग्जाम में, उससे एक एक्स्ट्रा पहले फाइंड करते हैं हम, ठीक है, और फिर उसे राउंड ऑफ करते हैं। तो पहले मैंने 6.275 रखा, ठीक है। 2.55 को करेंगे तो मैं डिवाइड करूंगा अगर 2.55 को, तो 2 1 जा 2, देन 2 2 जा 2.55, 2 2 जा 15 आएगा, तो 2 7 जा एंड अगेन 5 जा, तो ये आएगा माइनस 1.275। These are the two answers I am getting, ठीक है। Now I will make it 2 decimal places. तो 2 decimal places कैसे बनाना है, तो डेसिमल के बाद ये 1 और ये लास्ट 2 को राउंड ऑफ करना है, तो 75 को राउंड ऑफ करके बन जाता है 8 और 75 को राउंड ऑफ करके बन जाता है 8। दिस इज माय आंसर। छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ सिर्फ कैलकुलेशन की, और कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में, मतलब इस टाइप ऑफ सम्स में, बस यही चीजें है, ठीक है। किसी को यहाँ तक कुछ, मैं एक बार वापस सम रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, बट आई एम जस्ट आस्किंग दैट किसी को ये वाले स्टेप में यहाँ पे कुछ छोटी मोटी कुछ बीच में कुछ डाउट है तो जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क मी। सबसे पहले तो ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। फ्रॉम द क्वेश्चन आई फाउंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, उसको मैंने फॉर्मूला में पुट किया, ए बी सी की वैल्यूज को, ठीक है। बाद में मैंने उसके सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया √57, तो इसकी वैल्यू मैंने टेक्स्ट बुक के पीछे देखी, ठीक है, तो मुझे √57 की वैल्यू मिली 7.55। अब वैल्यू 7.550 लिखी हुई है, ठीक है, बट डेसिमल के बाद 0 को लिख के कोई मतलब नहीं है, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता डेसिमल के बाद, तो इसलिए मैंने सिर्फ 7.55 लिखा। अगर ये 7.553 होता तो मैं इस पूरे वैल्यू को लिखता यहाँ पे, तीनों डेसिमल को, बट 0 था इसलिए मैंने उसको इग्नोर किया। ओके, फिर मैंने इसे सॉल्व किया डेसिमल में, मैंने कहा था यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डेसिमल प्लेस सॉल्व करना है, तो मैंने एक एक्स्ट्रा डेसिमल प्लेस सॉल्व किया एंड आई गॉट दिस फाइनल आंसर, ठीक है। यस, हैज एवरीवन अंडरस्टूड दिस? यस, नो डाउट्स। चलो, कि कोई डाउट नहीं पूछ रहा है तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यू डोंट हैव एनी डाउट्स। ओके, आई वांट यू टू सॉल्व वन मोर सम, सब क्वेश्चन 2।
सब क्वेश्चन 2x सॉल्व करो फटाफट। पुट करो फॉर्मूला में ये वैल्यूज। यस, क्या वैल्यू आ रहा है फॉर्मूला में पुट करने के बाद? रूट के अंदर क्या नंबर आ रहा है? यस, रूट के अंदर क्या नंबर आ रहा है? हु विल टेल मी? आई विल आस्क एनीवन, वेट। यस आयुष। Sir, I am getting 33. 33? Yes, sir. 33. What students have sent me the answer is a little different. Just take it once again. Heath, yes, क्या आंसर मिल रहा है? तो मुझे भी 33 आया। 33. Okay. 3 square minus 4ac. वन 129 आना चाहिए रूट के। हाँ सर, यही आया था, बट 129 की वैल्यू नहीं दी है, इसके लिए फिर माइनस किया था। हाँ, सो अभी देखो यहाँ पे आपको 3 डिजिट नंबर आ गया 129। अब हमारे पास तो जो स्क्वायर रूट है वो सिर्फ 100 तक का है, ठीक है। तो आपको इस नंबर को ब्रेक करना पड़ेगा, आपको इस नंबर को ब्रेक करना पड़ेगा। 129 क्या है? अच्छा, किसका माइक ऑन है? प्लीज बंद कर लो। यस, सो इसको मैं थोड़ा सा फैक्टराइज कर देता हूँ। 3 4 जा 3 3 जा, ठीक है। यस, 33 तो नहीं आ रहा ना किसी को? 33 कैसे आ सकता है? लेकिन मैं सोच रहा हूँ 33 आया कैसे? अच्छा, इसको माइनस कर दिया होगा आपने, साइन को प्लस करना होता है। 81 प्लस 48 है, सो अगर आपने माइनस कर दिया होगा तो आई गेस आपको 33 आ रहा होगा। 33 इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो अभी देखो 129 की वैल्यू तो नहीं है मेरे पास, ओके। तो मैंने क्या किया, 129 को स्प्लिट कर दिया, ठीक है। 43 इंटू 3, 129 की वैल्यू नहीं है ना, तो 43 इंटू 3 क्या होता है? 129 होता है। तो अब आप इनकी अलग से वैल्यू लिखो, √43 और √3। समझ रहा है मैंने क्या किया है? हमारे पास √129 की वैल्यू नहीं है एक साथ, तो मैंने क्या किया, 129 को स्प्लिट कर दिया, 43 और 3। तो √43 की वैल्यू क्या मिल रही है? √3 की वैल्यू तो मुझे पता है होती है 1.732, बट √43 की वैल्यू क्या है? चेक बिहाइंड द टेक्स्ट बुक। 6557 आ रहा है आई गेस।
ये आ रहा है, करेक्ट। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स है थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में, तो एक काम करो, देखो 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको काम करो 3 डिजिट लिखे करो, 3 डिजिट से ही कर लो, बिकॉज 4 डिजिट एक्चुअली बहुत बड़ा है। ऐसा हर सम में नहीं होगा, ठीक है, आई एम टेल यू, जैसे 3 डिजिट नंबर आया ना, ये हर सम में नहीं होगा, बहुत ही रेयरली कोई सम्स में होगा, इस सम में हो गया है, ठीक है। तो 5 3 15, 1 5 3 15, 16 1 is 18 19 0 और पॉइंट आएगा यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट है, और यहाँ पे 2 नंबर के बाद 4 के बाद पॉइंट आएगा। तो यस, इज एवरीवन गेटिंग द वैल्यू एज 11.331? ये मिल रहा है मुझे। ओके, तो 11.33 आ रहा है, 11.332 ले लो, 11.33 भी चलेगा। सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज अपॉन 2, सो 9 प्लस माइनस 11.33 2 अपॉन 2, सो एक बार प्लस और एक बार माइनस, वंस प्लस एंड वंस माइनस। See, this topic is difficult. Okay, इस टॉपिक को इजी समझ के मत चलो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर्स इन योर टेक्स्ट बुक। आपके टेक्स्ट बुक में 3-4 डिफिकल्ट चैप्टर्स है, उसमें से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो उसमें कोई स्पेशल नहीं है, उसमें खुद को बेवकूफ मत समझो या खुद को डिमोटिवेट मत करो, ये सबके लिए ही डिफिकल्ट होता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट धीरे धीरे हम समझ लेंगे, कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट सम है ना, फर्स्ट सेकंड सम में तो प्रॉब्लम होगी ही, फिर धीरे धीरे वी विल गेट यूज्ड टू इट। जस्ट सॉल्व दिस। टू डेसिमल प्लेस तक करना है ना। Okay, this is the last sum for today. Yes, there is a this is negative, ये negative है।
सर 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करके क्या, थोड़ा जोर से बोलो। कुछ सुनाई नहीं दे रहा आपने क्या कहा। ठीक है, दिस इज द आंसर। ओके, वी हैव डन सब क्वेश्चन 1, सब क्वेश्चन 2। ठीक है, रिमेनिंग वी विल कंटिन्यू इन द लास्ट। राउंड ऑफ कैसे करते हैं? 66 है तो वो 70 बन जाता है, 65 है तो वो भी 70 बन जाता है, 64 है तो वो 60 बन जाएगा, 4 तक होता है तो वो प्रीवियस 10 के मल्टीपल पे राउंड ऑफ होता है, और 5, 6, 7, 8, 9 होगा तो वो नेक्स्ट 10 के मल्टीपल पे राउंड ऑफ होगा। सर बट पीछे आंसर अलग है। क्या? सर पीछे है 10.18 माइनस 1.18। दोनों में 118 है ना? ठीक है, वो इट्स ओके, कितना सा, क्योंकि ये वाला सम 3 डिजिट का था तो इट्स ओके, कितना चलता है। सर तो आपका राइट है। हाँ हाँ, यस यस, हमें और भी एक्यूरेट आता, हमें और एक्यूरेट कब आता, जब हम उस जो 4 डिजिट के नंबर को हमने जब वो 4 डिजिट के नंबर को हमने 3 डिजिट कर लिया था ना, थोड़ा सा जो एरर आ रहा है ना वो उसी की वजह से आ रहा है। अगर आप उन 4 डिजिट्स के नंबर को, वैसे कुछ तो जो आंसर आया था ऐसा कुछ, तो उसको अगर आप 4 डिजिट से ही मल्टीप्लाई करते ना तो आपका आंसर और एक्यूरेट आता। बट दिस इज ओके, नॉट टू वरी अबाउट दैट, चलता है। इतना 0.01 का मिस्टेक है हमारा, 0.01, so that is not a big deal, right? Okay, I'll end the lecture here.